Okay guys, in today's session we are going to discuss a new topic, and that is a pseudo force. Okay, and this topic is quite helpful to analyze the system. When you solve some means to analyze some system which on the basis of a force. Okay, so at that time this concept is very helpful to you. Okay, so you understand it properly because it is quite different one. Okay, let's start with this one. The general pseudo force is denoted by Fp, pseudo force. Okay, so it is denoted by Fp. Let's see, understand first what is the meaning of pseudo force and why we are defining this one. So here we just take two cases. So case 1, let's we start with the case 1. You have a one system like this. You just consider, suppose you have a one system, a mass m is connected to the string in this way, and another side the string is connected to the another mass m naught. Okay, ऐसे कोई system है. Now you observe the system from the ground. So that is a ground. You observe the same system from the ground. अगर आप ground से observe करें तो फिर ये object से downward acceleration में जाएगा, तो ये object इस direction में acceleration में जाएगा. Now you draw the FBT of this both the objects. So here this force is applied m naught g, and here this force is applied t. So on this objects another force is applied t, and string is same. Throughout the same tension is applied, as we know. If you apply this FBD for the m, means Newton's second law for the m. So here Newton's second law for mass m, for mass m. अब m के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करो. So what is this Newton's second law? F net is equal to ma. So right hand side force means here the acceleration is towards right hand side. So right hand side force tension. Here left hand side force is 0. So left hand side is 0. So t minus 0 is equal to what? Ma. Is equal to what? Ma. So what is your answer? T is equal to ma. That is a very well known situation, and we solve number of this type of problem in the previous lectures. Okay, so that is a very simple. Yeah, when thus you just observe any objects from the ground. So here ground is a reference frame. In this situation, ground is reference frame. That is the case 1. Now we are changing our reference frame. Okay, now let's come to the case 2. Now before we discuss the case 2, you must be understand one situation. Suppose you are sitting inside the accelerating train, and one bag is put near to you. Okay, now you observe the bag. What do you observe? Bag is at rest. But you observe the same bag from the platform or from the ground, then the bag is also accelerating. मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर वो रेस्ट पे, आपको रेस्ट पे लगेगा. एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है. एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स डज नॉट एट रेस्ट. एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, बट फ्रॉम वेयर यू ऑब्जर्व इट, फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग फ्रेम. अगर आप उसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम से ही ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? रेस्ट पे लगेगा. एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ आप भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, सेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो. डिफरेंट में हो तो आपको एक्सेलरेशन लग भी सकता है, लेकिन आप सेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो तो आपको वो कैसा लगेगा? रेस्ट पे लगेगा. ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम इसमें सेकंड केस में अप्लाई करते हो. नाउ हियर दिस ग्राउंड फ्रेम इज अ रेफरेंस, मतलब आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो. नाउ एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज अ रेफरेंस फ्रेम. सो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम आपके पास है, तो आंसर कैसे रहेगा? देखो, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल मीन्स द सेम एग्जांपल विद द डिफरेंट वे. वी अंडरस्टैंड द सेम एग्जांपल विद द डिफरेंट concept. Let's see, suppose mass m is connected to the m naught, the same situation. But here your observation place is string. Your observation place is accelerating objects. Now you are in a accelerating frame. See, you observe the objects from itself. आप ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर मतलब कि जैसे कि आप बैग्स को ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको बैग कैसा लगेगा? रेस्ट पे. तो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट्स भी कैसा लगेगा इस पर्सन को? रेस्ट पे. एक और एग्जांपल लेता हूँ. इफ यू आर जस्ट इफ यू आर गोइंग ऑन अ बाइक विथ योर फ्रेंड, देन विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड इज एट रेस्ट, and with respect to your friend you are at rest. Why? Both are moving together. मतलब आप एक दूसरे के रेफरेंस फ्रेम में हो तो फिर आपको रेस्ट पे लगेगा. एक्चुअली मूविंग है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको कैसा लगेगा? रेस्ट पे. तो ए ऑब्जेक्ट्स भी कैसा लगेगा यहाँ पे? रेस्ट पे. दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर,
ओके, नाउ यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो ऑब्जेक्ट आपको अगर रेस्ट पे लगता है तो वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होना चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट का एफवीडी बनाओ। सो हियर दिस राइट हैंड साइड फोर्स इज व्हाट, टेंशन, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट because you observe from here, it's here this force is m not, just here tension is present, so tension like this. But if you observe this object, then it objects is at rest, so Newton first law is applied. As per the Newton first law, net force becomes zero. बट यहाँ पे तो राइट हैंड साइड ही फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड कोई फोर्स ही नहीं है, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता। तो आपको कोई एडिशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा, एंड दिस फोर्स इज नोन एज अ शूडो फोर्स। Actually this force is not present, actually this pseudo force is not present here, but you are in accelerating frame। आप कहाँ पे हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, तो मतलब आपको कोई एक एडिशनल फोर्स वहां पे देना होगा, जिससे ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, रेस्ट पे आना चाहिए। तो रेस्ट पे आने के लिए आपको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स देना होगा, ओके, तो ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन हियर व्हेनेवर यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, यू आर जस्ट गिव्स दिस एडिशनल फोर्स टू द ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज अ शूडो फोर्स। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को एक एडिशनल फोर्स देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो आपने एक एडिशनल फोर्स यहाँ पे दिया अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सा, Fp। कौन सा फोर्स आपने एडिशनल अप्लाई किया, Fp। नाउ यू हैव अ टू फोर्स, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आप न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों फोर्स सेम हो गए तो ऑब्जेक्ट्स आपके रिस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करो यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, T इज इक्वल टू Fp। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, दिस Fp इज नथिंग दैट शूडो फोर्स। एक्चुअली दिस फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, actually this force is not present, but whenever you observe any objects from the accelerating frame, you gives one additional as force, you just apply some additional force on the objects, this force is known as a pseudo force. Write down this definition, write down the definition of pseudo force. Whenever you observe the any objects, whenever you observe the any objects from the accelerating frame, then one additional force is required, one additional force is required to balance the system, one additional force is required to balance the system, known as a pseudo force, known as a pseudo force, okay. So here this Fp is nothing but pseudo force, here you must be applied this. Now see, thus both the systems is same, you are observe it from ground, you observe it from accelerating frame। तो यहाँ पे D का आंसर कितना है, m है, यहाँ पे D का आंसर कितना है, Fp। तो अगर आप दोनों रिलेशन को काउंट करते हो एक साथ, so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what is your answer, Fp is equal to ma, that is the magnitude of pseudo force, this is what, magnitude of pseudo force। Always this much of pseudo force is applied on the objects, always Fp is equal to ma, this much of pseudo force is applied on the objects, मतलब कि mass of the objects into acceleration of the objects। इतना pseudo force कोई भी objects पे लगेगा जब आप accelerating frame में हो, जब आप किस में हो, accelerating frame में हो, तो इतना pseudo force आपको अप्लाई करना है, Fp is equal to ma। So let's we write some of the special notes for pseudo force। So first note, magnitude। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, कितना है मैग्नीट्यूड, Fp ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ma। सेकेंड वन, डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपको अच्छी तरह से समझना है। Now where you apply the pseudo force, actually objects moving towards the right hand side with some acceleration, actually objects is moving towards the right hand side with the acceleration a, then you applied the force in a left hand side। आपने फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड था, आपने फोर्स लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई किया, इट्स मींस यू अप्लाई द pseudo force opposite to the acceleration, you applied the pseudo force opposite to the acceleration। So direction of pseudo force Fp is always opposite to acceleration of an objects, ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन के अपोजिट आपको ये फोर्स अप्लाई करना है।
और द सेकेंड केस, अगर ए रिटार्डेशन है तो फिर आपको उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रखना है। एक्सेलरेशन के अपोजिट मतलब कि रिटार्डेशन के सेम डायरेक्शन में। रिटार्डेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। सो अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो फिर आपको आप क्या इसमें अनदर सेंटेंस क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन की सेम डायरेक्शन में। तो और एफ पी इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज रिटार्डेशन। तो ये दोनों केस में से कोई एक केस आपके पास होगा, मे बी सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग, मे बी सिस्टम इज रिटार्डिंग। इफ सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग देन you just use the direction, you use the pseudo force in opposite direction of acceleration, and if the system is retarding then you use the pseudo force in the direction of acceleration. Okay, so that is the case, that is the direction. Fp is always opposite to the acceleration of an object, or Fp is always in the same direction. रिटार्डेशन है तो फिर सेम होगा और एक्सेलरेशन है तो फिर अपोजिट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, अपोजिट होगा। आपको याद रखना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। कितना अप्लाई हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है, एम ए। हियर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन व्हाट एवर द गिवन हियर। हाउ मच एक्सेलरेशन इज गिवन हियर, दिस ए। मतलब आप जिस सिस्टम में से ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करें उसके अपोजिट आपको इतना फोर्स अप्लाई करना है। मतलब जिस सिस्टम में से जहां से मतलब रेफरेंस फ्रेम है, जो भी रेफरेंस फ्रेम है उसमें से आपको इतना अप्लाई करना। मतलब आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपको ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सेलरेशन देना है। किसका, जिसमें से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रॉम वेर यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट्स, तो उतना ही एक्सेलरेशन मतलब उतना शूडो फोर्स उसको देना है। वहाँ पे ए जो है ए वो एक्सेलरेशन होगा रेफरेंस फ्रेम का, मतलब जिस रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पे आपने इस रेफरेंस फ्रेम में हो एम का एक्सेलरेशन कितना था ए, तो यहाँ पे ए दिया। ठीक है, सो एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। ओके, सो थर्ड वन हियर, एम इज अ मास ऑफ एन objects and a is a acceleration of reference frame, acceleration of मतलब आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्सेलरेशन आपको उस ऑब्जेक्ट्स को देना। यहाँ पे आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया, यहाँ से, तो इसका एक्सेलरेशन कितना था तो मैंने यहाँ पे ए दिया। ठीक है, तो ये ए हुआ थर्ड नोट्स। यहाँ पे एम लेना है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए लेना है एक्सेलरेशन ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम। तो आप इन दोनों केस को ले रहे हो, ग्राउंड इज अ रेफरेंस फ्रेम, एट दैट टाइम यू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, एंड द एक्सेलरेटिंग फ्रेम एट दैट टाइम यू अप्लाई सपोज न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो है रेस्ट पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से ही आप उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो ग्राउंड इज अ रेफरेंस फ्रेम, इज अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एंड एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम मींस इट इज अ ground is a reference frame, this is a inertial reference frame, and the accelerating reference frame means what is a non-inertial reference frame. As we studied during a previous session, non-inertial reference frame का acceleration 0 नहीं होता है, means it does not obey the Newton first law, और inertial reference frame है और Newton first law को obey करता है। It means here ground, whenever your reference frame is inertial, pseudo force does not apply. And whenever your reference frame is non-inertial, pseudo force must be applied. Okay, so यहाँ पे फोर्थ नोट है कब pseudo force अप्लाई करना है, when you apply the pseudo force. So if reference frame is inertial means what, ground, आप inertial के लिए ये भी बोल सकते हो कि acceleration is equal to 0. when if your reference frame is inertial means आप मान के चलो सपोज ग्राउंड है या फिर कोई ऐसी रेफरेंस फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये सभी एक्सेलरेशन, इस सभी रेफरेंस फ्रेम सेम ही है। ठीक है, when the reference frame is this one, inertial या फिर ग्राउंड या फिर एक्सेलरेशन 0 है, ऐसी कोई भी रेफरेंस फ्रेम है, then Fp does not applied, इसी कोई भी रेफरेंस फ्रेम में शूडो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ओके, बट इफ रेफरेंस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, if reference frame is non-inertial means
एक्सेलरेटिंग फ्रेम, कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ए है, ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, ए। आप जो भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आपके पास है, उस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, सपोज ए है, तो ऐसी कोई भी रेफरेंस फ्रेम है आपके, मतलब यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर देन एफ पी इज इक्वल टू एम ए इज अप्लाइड। तो ऐसी कोई भी सिस्टम में इतना सूडो फोर्स अप्लाई होगा। सो दैट्स आर द 4 नोट्स यू मस्ट बी रिमेंबर टू अप्लाई द सूडो फोर्स, व्हेन इट इज अप्लाइड, व्हेन इट इज नॉट अप्लाइड, हाउ मच अप्लाइड, इन विच डायरेक्शन इज अप्लाइड। ओके, यहाँ पे मैंने सारे आंसर एक साथ ही लिखे, व्हेन द सूडो फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन इट इज नॉट अप्लाइड, हाउ मच इट इज अप्लाइड, एंड इन विच डायरेक्शन इज अप्लाइड। सो व्हेन इट इज अप्लाइड, व्हेन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज प्रेजेंट, व्हेन इट इज नॉट अप्लाइड, व्हेन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज प्रेजेंट, how much it is applied, fp is equal to ma, and in which direction it is applied, in the direction of acceleration or in the opposite direction, sorry, in opposite direction of acceleration or in the direction of retardation। ठीक है, तो पूरा टॉपिक्स आप अच्छी तरह से अपनी बुक्स में नोट कर लो, और जो पूरी थियोरी है वो आपको एडिशनल नोट्स में लिखनी है। ठीक है, सो राइट डाउन दोस एडिशनल नोट्स इन योर बुक्स and you understand it properly. When you remember this whole this 4 notes, whenever you solve this problem, you are using this all those notes. Okay, not this, then after we solve some examples. Okay guys, let me solve some example which is based on a pseudo force. Here this problem statement is what, find the acceleration of system. What you have to find out, find the acceleration of the system, मतलब ये acceleration एक given है, फाइंड करना है। ठीक है, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ द मास m इज एक्सर्ट्स अ फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर, मतलब कि इतना जो फोर्स है वो फोर्स ये मास इस फ्लोर पे अप्लाई कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट सरफेस है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो दिस फोर्स इज अ नॉर्मल फोर्स। सो एक्चुअली नॉर्मल फोर्स इज डायरेक्टली गिवन टू यू। व्हाट इज दिस, n is given to you and you have to finding out the say. So here you only just draw the FBD, you getting this answer. Okay, but first we solve this problem with the ordinary method, means we whatever we are solve up to this one, then after we are going to the pseudo force method. Okay, so let's see case 1, मतलब कि ground is reference frame, ground reference frame मतलब inertial रेफरेंस फ्रेम। आप इस ऑब्जेक्ट को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में से देख लो, मतलब कि ये फिगर है, यहाँ से आपको इसको ऑब्जर्व करना है। इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, देन व्हाट हैपन, सी यू जस्ट ड्रॉ द ऑल फोर्सेस। ओके, इफ दिस होल द सिस्टम मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन, दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कौन सा अप्लाई होने वाला है, mg. Here this contact surface is given to you, so at this contact surface which force is applied, normal force, and this normal force given, see if the mass m is exerts a force mg/4 on the floor, मतलब फ्लोर पे जो फोर्स लग रहा है mg/4 है, तो ये नॉर्मल फोर्स हुआ ना। नॉर्मल फोर्स मीन्स व्हाट, फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका फोर्स हुआ। ठीक है, तो आप उसका सिर्फ FBD बनाओ, सिर्फ मास m का। सो अगर आप मास m का FBD अप्लाई कर रहे हो, तो मास m, ओके, दिस मास m, डाउनवर्ड फोर्स इज mg, upward force is normal force, and acceleration is a. What is this normal force actually, mg/4, it is directly given mg/4. ओके, एंड यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द ग्राउंड, आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे जा रहा है। सो this object is having some acceleration, so you just apply the Newton's second law. So as per the Newton's second law, F net is equal to ma, force in the direction of acceleration minus opposite direction of acceleration is equal to ma. So acceleration downward है, तो acceleration direction में कितना फोर्स है, mg, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, mg, अपोजिट में कितना है, n, सो माइनस n इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास है m, सो इनटू ma is equal to ma. Now you just put n is equal to mg/4. What is your answer? mg minus mg/4 is equal to ma. M cancel out, g minus g/4.
here m cancel out, g minus g by 5, so 4 is here, 4 minus 1 3, so acceleration का आंसर हो गया 3g by 4. दिस इज योर आंसर ऑफ acceleration, 3g by 4. आप इसका सिंप्लीफाई करो, m को कैंसिल करो, दैट इज अवर acceleration. And this one is the standard method when the ground is reference frame, and we solve number of problem based on this. Now the same problem is solved by the using concept of pseudo force. Okay, let's see. I'm just drawing the same figure here. So this type of system is given to you, that is a object same, this whole system moving downward with acceleration है, ये पूरी सिस्टम डाउनवर्ड साइड कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, ए से. नाउ यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इनसाइड दिस वन, मतलब आप कहां पे आ गए अभी, नाउ वेयर यू आर, नाउ यू आर इनसाइड दिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम. सो केस 2, मतलब कि इस मेथड से भी आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर कोई चेंज नहीं होगा. इसमें आंसर था 3g by 4, तो इसमें भी आंसर 3g by 4 ही आएगा. देखो, नाउ यू आर इनसाइड द एक्सेलरेटर, मतलब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस है, मतलब कि एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम. आप कहां से ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करो, एक्सेलरेट, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन में वहां से ही आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो. तो पहले इसका एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी बनाते हो तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा अप्लाई होगा, mg. अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, n. ये तो अप्लाई होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप कहां पे हो, वेर यू आर राइट नाउ, यू आर इनसाइड दिस वन, यू आर इनसाइड दिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब कि यू मस्ट बी अप्लाइड सम सूडो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. राइट नाउ एक्सेलरेशन इज इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड, देन यू अप्लाइड वन अनदर फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, fp. यहां पे आपको क्या अप्लाई करना होगा, fp. यहां पे अप्लाई करो fp. देखो, रूल नंबर 1, सॉरी रूल नंबर 2, वे इन विच डायरेक्शन यू अप्लाई दिस न्यूटन, सॉरी सूडो फोर्स अपोजिट टू द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो मैंने अपवर्ड अप्लाई किया. हाउ मच, फर्स्ट रूल इज इक्वल टू m है, एक्सेलरेशन कितना है, a है, तो आपको यहां पे कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू m है. How much pseudo force you must be applied, ma. Now if you observe this object from inside this one, then with respect to you this object is at rest. अभी आप इसको कहां से ऑब्जर्व करो, अंदर से, तो फिर आपको थोड़ी ना लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट से एक्सेलरेशन से जा रहा है. यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है. ठीक है, तो फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कौन से है, n प्लस fp. डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg. now what is the fp, fp is equal to ma. what is the n, n is equal to mg by 4. so put the all value, mg by 4 plus ma is equal to mg. m cancel out and g by 4 comes on right hand side, so a is equal to g minus g by 4. इसका कैलकुलेट करो तो a is equal to 4 minus 1 3g by 4. see, your answer is again whatever you get this first one, you get the same answer, no change. अगर आप सूडो फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और नॉट. तो ऑब्जेक्ट जो है इन दिस सिचुएशन रेस्ट पे आएगा, क्योंकि आप कहाँ से ऑब्जर्व करो, इनसाइड द रेफरेंस में. मतलब कि ऐसा सोचो कि कोई बैग से और एक बस में आपके साइड में रखा हुआ है, तो आप उस बैग को ऑब्जर्व करो, तो एक्चुअली बस मूव हो रही है तो फिर बैग भी मूव हो गया, आप भी मूव हो गए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू यू दिस बैग इज एट रेस्ट. एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो यहाँ पे मैंने एक एडिशनल फोर्स अप्लाई किया fp, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, कितना, ma जितना, और उसके बाद न्यूटन फर्स्ट स्टेप किया, दैट इज अवर आंसर. डू यू अंडरस्टैंड? सो बाय दिस वे यू जस्ट अप्लाई द सूडो फोर्स. ओके, नोट करो इस प्रॉब्लम को, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Okay guys, let's come to the second problem, which is based on the pseudo force. Find the normal reaction between the block A and B. Here the figure is given to us. We have to find the reaction at this surface. Okay, at this surface between the A and B. Now this whole system is moving downward with the 2 meter per second square, and the mass of A is given to us. What is this mass? 0.5 kg.
Now the case is what, we have to again two methods. Case 1, the ground is a reference frame. Ground is a रेफरेंस फ्रेम. तो फर्स्ट केस है और होमवर्क में करना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने सॉल्व किया, मतलब इसका एफपीडी बनाओ, ए ब्लॉक का एफपीडी बना के आपको न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके ए सॉल्व करना है. सो फर्स्ट केस इज इन होमवर्क. नाउ लेट्स वी सॉल्व डायरेक्टली केस 2. मतलब कि यू जस्ट ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनसाइड दिस सिस्टम. Okay, now you observe these objects. Case 2, you just use this pen. Okay, we just draw this figure with this one. Now you observe from inside this one, so that is a case 2 for us. So right now you are inside the accelerating frame. You are inside the accelerating. आप यहाँ से observe कर रहे हो, ठीक है, और एक contact surface है. Here this is the contact surface which is given to you. This surface is what? Contact surface. There is some normal force is produced, and we have to find this normal reaction between these two. Okay. Now what we are doing actually? See, first you just draw the forces on the block F. So first force is what? Downward force. Mass of A is given. So downward force is which one? mg. So first force. Now second force. Normal reaction due to A on the B is downward. नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बी ऑन द ए इज अपवर्ड. तो इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा जो हमें फाइंड करना है. सो दैट इज द फर्स्ट टू फोर्सेस ऑन द ब्लॉक ए. Now you are observing this block from inside the accelerating frame, so one additional force you must be applied on the block, and that is a pseudo force in opposite direction of acceleration. Right now how much acceleration? 2 meter per second square downward side, so you must be applied some additional force here in upward direction. Why? Acceleration is downward, so how much force you applied here? Additional fp in upward direction. Now with respect to you, this block is at rest. Okay, so with respect to reference frame, which reference frame? Non inertial reference frame, block A is rest. Okay, so block A is at रेस्ट. अगर वो रेस्ट पे है तो उसका एफबीडी बनाओ. चलो, तो एफबीडी जो वहां पे वही बनाना है, तो दैट इज द ब्लॉक ए. ओके, हियर इट इज द ब्लॉक ए. डाउनवर्ड फोर्स इज विच वन? एम ए इंटू जी. अपवर्ड फोर्स इज विच वन? नॉर्मल रिएक्शन. और दूसरा एक और भी है, वो कितना है? एफ पी, है ना. तो अपवर्ड फोर्स इज एन प्लस एफ पी एंड डाउनवर्ड फोर्स इज एम ए इंटू जी. तो अप्लाई दिस लॉ हियर. Here just apply this concept Newton first law. Why Newton first law? As per your consideration, this block is at rest. अगर आप उस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर ब्लॉक कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा. ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक डाउनवर्ड मूव होगा, जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपने ये फोर्स अप्लाई किया है तो अपवर्ड फोर्स एन प्लस एफ पी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम ए इंटू जी. तो एफ पी का आंसर ऑलवेज क्या रहता है? एम इंटू ए. m here the mass of this object है, a is a accelerating frame का acceleration. तो ब्लॉक का मास कितना है? m है, और accelerating frame का acceleration कितना है? स्मॉल है. सो a is equal to ma into g. तो इसमें से n क्या हो जाएगा? सो n is equal to ma into g. This positive terms comes in right hand side becomes negative. So ma into a. So you have ma 0.5. So put the value. So n is equal to 0.5. G minus a. G means 10. G means what? 10. And a is 2. So 10 minus 2 it's a 8. I am just put the value directly. Okay. So 10 minus 2 is 8. So 8 into 0.5. So answer is what? 4 Newton. This is your final answer. That is your final answer. Here you get this 4 Newton by this way. ओके अगर इस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का आंसर 4 न्यूटन ही आएगा. सो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस फर्स्ट प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, एंड हियर इन अ सेकंड मेथड वी यूज द अगेन द concept of a pseudo force. Not this example, then after we are go to this next one. Okay, let's come to this next example which is based on a pseudo force. If all surfaces are frictionless, तो यहाँ पे जो भी surface है वो frictionless काउंट करनी है, ठीक है. Then find the acceleration of the wedge. That's called a wedge. इसको हम wedge बोलते हैं, ठीक है.
assertion of wage so that the block is at rest with respect to wage। मतलब अगर आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर ब्लॉक कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ब्लॉक जो है वो वेज पे मूव नहीं करना चाहिए, वेज ही मूव करना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू जस्ट अप्लाई दिस pseudo force concept over in this example, then you get this answer easily। okay, let's see now this whole wage is moving towards the right hand side with the acceleration a। now we draw the forces on this block M, then as we know this force is what, mg sin theta, and this force is what, mg cos theta। that is very well known theory as we studied in the previous sessions। okay, so draw the forces on this block M over the inclined plane, then parallel components of the force is mg sin theta and perpendicular component of the force is what, mg cos theta। now this wage is moves with acceleration a, wage is moving with the acceleration a। now you observe these objects from over this one, मतलब आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हो और फिर शूडो फोर्स अप्लाई, ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हो तो फिर शूडो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो आप वो ग्राउंड वाली फ्रेम का घर पे कर लेना, ठीक है, मतलब वो होमवर्क में कर लेना। डायरेक्टली हम शूडो फोर्स का कैसे डायरेक्टली अप्लाई करते। नाउ यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, मतलब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, मतलब आप कैसी फ्रेम में हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो। ओके, सो यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो तो फिर जो ऑब्जेक्ट्स है उस पर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट्स है उस पर क्या लगेगा, शूडो फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी इस पे आप शूडो फोर्स अप्लाई करो तो कौन सी डायरेक्शन में एफ ब्लॉक जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इस पे शूडो फोर्स अप्लाई होगा। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, how much force is applied on left hand side, fp। ओके, सो राइट हैंड साइड जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड शूडो फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी शूडो फोर्स के भी दो कंपाउंड्स बनेंगे, एक कंपाउंड जो है वो यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ आएगा, ऐसे। फर्स्ट कंपाउंड इज like this and second compound like this। now if you have to finding out this angle, then angle between horizontal and this inclined plane is theta। so this horizontal inclined, this angle is also what, theta। ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। तो उसके दो कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कंपाउंड एफ पी कॉस थीटा एंड सेकेंड कंपाउंड एफ पी साइन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तो ये है कि एक इसी कंडीशन फाइंड करो जैसे ब्लॉक रेस्ट पे, तो पहले वही फाइंड कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बाद में देखें, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अगर आप यहाँ से देखोगे, आप वेज पे रहे तो ये ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे वो गिवन है। आपको एक्सेलरेशन ऐसा चाहिए जैसे वो ब्लॉक कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे विथ रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब आप वेज पे ही हो तो आपके रिस्पेक्ट में भी वो ब्लॉक कैसा रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए। सो विथ रिस्पेक्ट टू यू ऑल्सो दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो हियर वी राइट इफ यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम मीन्स यू आर ऑन द वेज, देन ब्लॉक is at rest with respect to you। you मतलब what, वेज। आप वेज पे तो हो तो मतलब आपके रिस्पेक्ट में भी हो, ब्लॉक कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। तो रेस्ट पे है तो उसका एफबीडी बनाओ पैरेलल टू द प्लेन। ओके, तो अगर आपने पैरेलल टू द प्लेन उसका एफबीडी बनाया एम, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ पी कॉस थीटा, एफ पी cos theta। so here if this block is at rest then this both the force must be equal and opposite। okay, as per the Newton first law। तो यहाँ पे आपने अगर Newton first law अप्लाई किया then F net is equal to 0। so this force is equal to this force। आंसर क्या होगा, mg sin theta is equal to fp cos theta। but what is fp actually, fp is equal to ma। इसका एक्सेलरेशन a है तो ma आ जाएगा, तो आंसर होगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। सो एम यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। आपको फाइंड करना है तो एस कॉस थीटा यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, 10। सो आंसर हुआ ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। अगर ये वेज रेस पे है तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा जी साइन थीटा से, एज वी स्टडी इन प्रीवियस सेशन। अगर ये वेज जो पूरा है वो रेस पे ऐसे ही देखो, अगर ये वेज ऐसे ही रहता है वो मूव नहीं करता है,
अगर ये पहले से ही रेस पे आपने उसको एक्सेलरेशन नहीं दिया तो फिर ये जो ब्लॉक है वो नीचे मूव करेगा a इज इक्वल टू g साइन थीटा से, एज वी नो। ओके, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक इस साइड मूव करेगा। बट अगर आपने इसको एक्सेलरेशन दिया तो फिर उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगने वाला है Fp। सो ड्यू टू दिस Fp दिस ब्लॉक इज कम्स टू रेस्ट। ओके, अगर और कितना होना चाहिए एक्सेलरेशन, g tan थीटा होना चाहिए। अगर आपने वेज को g tan थीटा एक्सेलरेशन दिया तो फिर ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। दैट इज द सिचुएशन हियर। ओके, इस सिचुएशन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। पूछा नहीं लेकिन ऐसा फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये फाइंड करना है। चलो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा इस सरफेस पे। तो मान लो कि आपने यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्रॉ किया तो वो यहाँ पे इस तरह से होगा। तो इस साइड का फोर्स इज इक्वल टू इस साइड का फोर्स होना चाहिए। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, N इज इक्वल टू Fp साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, ऐसा होगा। परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स। सो Fp sin थीटा प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू n। यहाँ पे आप Fp की वैल्यू रखो m और m की एक ही जगह पे रखना है g tan थीटा। सो सिंप्लीफाई घर पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू m इंटू a, m इंटू a, बट a इज व्हाट, g tan थीटा। सो पुट हियर g एक्चुअली ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। यहाँ पे आप रख दो m एज इट इज, एक ही जगह पे रख दो g tan थीटा, g tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। tan थीटा की जगह पे फिर से साइन अपन cos रख देना और इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना तो आपको नॉर्मल का फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन इज इन होमवर्क। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, होमवर्क में। सो दैट इज सम सिचुएशन वी हैव टू सॉल्व विद द यूजिंग ऑफ अ सूडो फोर्स। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है क्योंकि ये वेज है और एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो कंडीशन क्या हुई, a इज इक्वल टू जी टेन, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। आपको ये थीटा कुछ ऐसा रखना होगा यहाँ पे कि जैसे tan थीटा की वैल्यू a बाई जी सेट हो। ऐसी दूसरी सिचुएशन भी आप काउंट कर सकते हो। देखो, इफ यू कंसिडर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, कार, हियर इट इज that is a car. If car, and here with this car this type of bow is connected. Okay, यहाँ पे this type of string and bow is connected. If car is moving right now, car is, if car is at rest then bow is in vertical position. अगर कार रेस्ट पे है, if the car is at rest then bow is in a vertical condition. Okay, but the car is moving with some acceleration. Okay, if car is moving with some acceleration a, then this original condition of the bob is changed. Bob is comes somewhere here and is making angle some theta with the vertical. ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे भी आप दोनों ही केस ले सकते हो। You are observe this object from inside the car, you are observe the objects from the outside of the car. अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो देखो इसमें भी कौन सी कंडीशन, ए ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कंडीशन है। व्हेन द कार इज एट रेस्ट और व्हेन कार इज एक्सेलरेटिंग, तो ऐसी कंडीशन बनी। तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, चलो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से ऑब्जेक्ट को कर रहे हो तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, mg। यहाँ पे कितना फोर्स है, टेंशन। ओके, और एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, F पे। कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पे मैं उसकी जूम फिगर बना रहा हूँ तो ये बोब है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे mg है और यहाँ पे Fp है। Why you are applying this Fp force? Because you are observe this object from inside the accelerating frame. तो आपको ये फाइंड करना कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स था, एक्साइटिंग फ्रेम में आया तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है ऐसे पीछे आ जाएगा। तो अगर इसने थीटा एंगल क्रिएट किया वर्टिकल के साथ, देन यू फाइंड द एंगल थीटा। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे एंगल है थीटा। तो इसके दो कंपाउंड्स बनाओ, ऐसे दो कंपाउंड्स। तो ये z क्रिएट हुआ तो एंगल भी हुआ थीटा, तो ये होगा t cos थीटा एडजेसेंट कंपोनेंट
एंड ये होगा t sin थीटा अपॉन अनकंपाउंड, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये अब विथ रिस्पेक्ट टू u, अगर आप यहाँ पे हो तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट पे, देन विथ रिस्पेक्ट टू कार ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट पे। ये तो पहले से ही रेस्ट पे था, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपने एक्सेलरेटिंग फ्रेम ने यहां से ऑब्जर्व किया तो फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि आप कार के अंदर ही बैठे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में वो जो बॉब है वो मूव नहीं करेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो राइट हैंड साइड जा रहा है, अगर आप यहां से देख रहे हो कार राइट हैंड साइड जा रही है तो ऑब्जेक्ट भी राइट हैंड साइड जा रहा है, लेकिन आप अंदर से ही उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट जो है कैसा होगा, रेस्ट पे होगा। तो मतलब यहाँ पे हमने सूडो फोर्स अप्लाई किया, इसको कुछ काउंट करो तो फिर t साइन थीटा का आंसर क्या होगा, Fp, और t cos थीटा का आंसर क्या होगा, mg। अपोनेंट फोर्स सेम रखो, साइन थीटा इज इक्वल टू Fp एंड cos थीटा इज इक्वल टू mg। वर्टिकल फोर्स इक्वल, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल। व्हाई? बिकॉज वी अप्लाई एज पर दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसका रेशियो लो तो t कैंसल, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, बाय टेकिंग अ रेशियो। सो Fp का आंसर क्या होता है, m है, mg एज इट इज, सो mm कैंसल आउट, सो आंसर हुआ tan थीटा इज इक्वल टू f/g। अगेन यू गेट द सेम आंसर। सी, सो ऐसे कोई भी सिचुएशन है जिसमें से ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट्स है और ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इज कम्स टू द सम न्यू पोजीशन एंड इट इज कमिंग एट अ रेस्ट। ओके, अगर ब्लॉक पहले जो था, ये ब्लॉक अगर ओरिजिनल सिचुएशन में काउंट करते थे तो कैसा था, ये जी साइन थीटा से मूव हो रहा था, आपने कुछ एक्सेलरेशन एडिशनल दिया तो ऑब्जेक्ट कैसा आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो कंडीशन क्या होगी कि tan थीटा ऐसा होना चाहिए कि जैसे उसकी वैल्यू f/g सेट हो। सेम यही एग्जांपल आप यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, पहले रेस्ट पे था, कुछ एक्सेलरेशन आया तो कोई न्यू पोजीशन, मतलब थीटा पोजीशन पे अगर वो रेस्ट पे आया फिर से, ठीक है, तो tan थीटा का आंसर कितना होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू f/g। ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब कोई भी एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स इज कमिंग टू द रेस्ट इन अ न्यू पोजीशन एट द सम एंगल थीटा, due to the accelerating frame, if object is coming to rest at some new position at some angle theta, then you can say that this tan theta is always is equal to f/g। इक्वेशन हम काफी टाइम यूज करने वाले हैं एग्जांपल्स में। ओके, व्हेन वी स्टडी दिस नेक्स्ट चैप्टर्स, इन नेक्स्ट चैप्टर्स वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, सो यू रिमेंबर दिस थ्योरी एंड यू राइट दिस होल थ्योरी इन एडिशनल नोट। एक्चुअली एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने सीखा है, लेकिन थ्योरी है, वन टाइप ऑफ थ्योरी। ओके, तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नोट करो। Okay guys, let me solve one example which is based on a pseudo force and quite different one. Okay, here this figure is given in a problem statement. What is the problem statement? A small block B is placed on the another block A of mass 5 kg। तो ऐसा block A है, उस पे एक small block B रखा हुआ है, तो mass of this block A is what, 5 kg and the length is 20 cm। so length of this block A is 20 cm। इनिशियली ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए शोन इन फिगर, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ब्लॉक बी को इनिशियली रखा हुआ है ऐसे ही। नाउ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए, तो ऐसे 10 न्यूटन इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो ड्यू टू दिस फोर्स दिस ब्लॉक ए इज कमिंग इनटू सम एक्सेलरेशन है, मतलब ये मान लो कि एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है राइट हैंड साइड। ओके, ओके, फर्स्ट फोर्स इज अप्लाइड। सो अगर आपके फाइंड कर तो फाइंड भी कर सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। सो ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक ए। हाउ मच फोर्स, 10, हाउ मच मास, 5। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द गिवन सिचुएशन। नाउ दिस ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो frictionless surface, whole surfaces are frictionless, so we are not counting any friction. Find the time elapsed before block A is separate from A, मतलब कि अगर ऐसे मूव रहा है तो कोई टाइम पे ब्लॉक भी उससे सेपरेट हो जाएगा, तो आपको फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इसमें। So time is equal to finding out when the block B and block A both are separate from each other. Okay, टाइम फाइंड करना है, कौन सा टाइम, when blocks are separate from each other, ये टाइम फाइंड करना है आपको, जब ये ब्लॉक दोनों सेपरेट हो जाएंगे।
तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे सिंपल केस अप्लाई कर सकते हो. यू जस्ट ऑब्जर्व दिस मोशन ऑफ अ ब्लॉक बी फ्रॉम हियर. अगर आप यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स को बी को इस फ्रेम में से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में. ब्लॉक है तो मूव कर रहा है, तो आप भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो. So if you are on this accelerating frame and you observe this motion of the block B, then the pseudo force is applied on the block B in opposite direction of acceleration or opposite direction of the accelerating frame acceleration. तो एक्साइटिंग फ्रेम आपके लिए ब्लॉक ए है, उसका एक्सेलरेशन कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड. तो फिर ब्लॉक बी पे एडिशनल फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे, कितना, एफ पी इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, है ना. इतना एक फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड है, तो एक्सेलरेशन एफ पी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए. इतना फोर्स, एक्सेलरेशन तो किसका लेना है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम का. जैसे मैंने सूडो फोर्स में आपको बताया था, यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा वो किसका होगा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम का, मास उसका ही होगा, तो इतना फोर्स अप्लाई होगा उस पर. This much of force is applied on this block. So due to this force, this block B also moving with some acceleration. अगर आप ब्लॉक B का FBD बनाओ सिर्फ, तो अगर ब्लॉक B का FBD बना रहे हो आप, then B some force is FP. So due to this force, due to this FP, block B is moving left hand side with some acceleration here. Now with respect to you, this one is coming to rest. अगर आप मैंने बोला था कि आप ट्रेन में हो और बैग को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर बैग आपके रिस्पेक्ट में कैसा होगा, रेस्ट पे. तो अगर आप ब्लॉक ए पे हो और ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ए तो रेस्ट पे आ गया, तो अभी ए तो रेस्ट पे है. यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ पी, एंड ड्यू टू दिस एफ पी दिस एक्सेलरेशन इज व्हाट, ए. नाउ टोटल लेंथ ऑफ दिस वन इज व्हाट, टोटल लेंथ इज L. मान लो कि x इज इक्वल टू 20 मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻² मीटर, मीटर में ही रखना है, सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, ठीक है. तो अभी A तो रेस पे आ गया ब्लॉक ए, तो इसको B को A से सेपरेट होने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़े, इतना ही ना. अगर A रेस पे है, दिस वन इज एट रेस्ट, देन इफ B इज वांट्स टू सेपरेट फ्रॉम A, देन हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द B, दिस मच. तो अगर ए ब्लॉक यहां से यहाँ पे आ गया, तो वहां से वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है. तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है, ए, मतलब यही एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का होगा, ए शुड एज पर द शुड ऑफ फोर्स एम बी इंटू ए. तो इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक्स डिस्टेंस कवर करना है, कितना टाइम लगेगा उसमें, वो आपको फाइंड करना है. तो सिंपल हो गया, यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आपके पास एक्स जीरो कितना है, 0, एक्स कितना है, एल के जितना, और ए लेना है, नहीं लेना है, 20 × 10⁻², ये सेंटीमीटर में, आपको मीटर में काउंट करना है. तो x0 0 हुआ, xl हुआ. इनिशियल स्पीड ब्लॉक बी की कितनी है, 0 है. डिस्टेंस इतना कवर करना है, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन कितना है, टाइम आपको फाइंड, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यू जस्ट रिमेंबर वन इक्वेशन इन विच दिस ऑल दिस डेटाज आर प्रेजेंट. सो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन ये यूज कर सकते हो, x - x0 इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 एट स्क्वायर. तो x0 भी 0 हो गया, v0 भी 0 हो गया. तो आप इसमें वैल्यू रखो, चलो 20 × 10⁻² इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन 2 है इंटू टी स्क्वायर. तो 2 2 कैंसल आउट, तो आंसर हुआ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20/100. तो 0 0 कैंसल आउट यहाँ से, तो इसका आंसर हुआ 1/5. तो आंसर हो गया t इज इक्वल टू 1/√5 सेकेंड. सो आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम दिस ब्लॉक B is separate from the block A, and here we solve this example by the using of pseudo force. ओके, इस तरह से आप ये पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो. मतलब आपको यहाँ पे ये समझना कि in which situation the pseudo force is applied and how we use this concept. ओके, सो पूरा एग्जाम्पल आपकी बुक्स में नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है. नोट करो.